Hello, good morning, students. Good morning, ma'am. Hello, good morning, बच्चे. Am I audible? Yes, ma'am. Clearly सुनाई दे रहा है बच्चे सबको? Yes, ma'am. Okay. चलो good. So let us start with the topic. So yesterday we are discussing the topic of quantum mechanics. ठीक है? तो सवेरे से आपका क्लासेस हो रही थी? हाँ बच्चे, क्लासेस चल रही थी, आपने अटेंड किया था सारे क्लासेस? हाँ बच्चे बोलो. क्या मैम? किया था? क्लास अटेंड सवेरे से कर रहे हो? 2 क्लासेस हुई थी ना? ये नहीं हुई थी? मैम हुई थी, सेकंड वाले में वॉइस नहीं आ रही थी. अच्छा, वही चीज मैं वही चीज वेरीफाई कर रही हूँ ना, आवाज सब ठीक से आ रही नहीं आ रही है. ओके, चलो अभी जो आवाज है सुनने के लिए काफी है. पढ़ सकते हैं? ओके, देखो लास्ट क्लास फंक्शन एंड क्वांटम मैकेनिक्स. फंक्शन is representing everything regarding the quantum mechanics system, and when you are discussing about the wave function, then we are saying this is a mathematical function of space coordinate and time. It is a complex quantity, that is we are discussing the properties of wave equation. So ये क्या जा रहा है? That is, it is a mathematical function. Recording in progress. Mod psi square dv equals to 1. ठीक है, इस चीज को समझो. क्या है कंडीशन ऑफ नॉर्मलाइजेशन? एंड नोट में इसको लिखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें छोटा छोटा न्यूमेरिकल आएगा, वेरी इजी न्यूमेरिकल, पर इसको समझना पड़ेगा क्या होता है. So what is this condition of normalization? The condition of normalization is saying that mod psi square dv equals to 1. That is mod psi square मतलब क्या होता है? That is psi star x y z psi x y z. जब भी हम लिखते हैं psi square मतलब वेव फंक्शन का स्क्वायर जब हम लिखते हैं that equals to mod psi square मतलब this equals to psi star and psi. Psi को अगर 3D में दिखाएंगे then it is a function of space coordinate and time. Similarly psi x y z ये है. Psi square is this. And condition of normalization क्या कहता है? That is integration of psi square with respect to this volume element equals to integration of this psi star and psi and that equals to dv. dv मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगी? अगर इसको हम खोलेंगे तो ये क्या होगा? This is psi star x y z t and this is psi of x y z t and this is dx dy dz. ठीक है? This is dx dy and dz. ऐसे फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं. ठीक है? And this condition is known as normalization. So why? And ये प्राइम रिक्वायरमेंट कंडीशन है. That is the
वेव फंक्शन इज ऑलवेज प्राइम कंडीशन, जैसे हमने बोला ये मैथमेटिकल फंक्शन है, इट इज सिंगल वैल्यूड है, अकॉर्डिंगली दिस इज आल्सो नॉर्मलाइज्ड, प्राइम रिक्वायरमेंट इज नॉर्मलाइज्ड। ओके, सो कभी कभी क्वेश्चन भी आता है व्हाई वेव फंक्शन नीड टू बी नॉर्मलाइज्ड, अगर शॉर्ट क्वेश्चन आएगा देन व्हाई वेव फंक्शन नीड्स टू बी नॉर्मलाइज्ड, बिकॉज अभी बताओ कल हमने पढ़ा था वेव फंक्शन को, हमने कैसे पढ़ा था, दैट इज साइज ऑफ वेव फंक्शन and psi square is the probability density, that is we are considering this is the probability of finding the particle, and psi square dv को हम define करते हैं as the probability, ठीक है। तो अगर हम इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन mod psi square dv, then this indicates the total probability, जो भी रीजन, अगर कोई डिफाइन नहीं है देन उसको ओवर द होल स्पेस माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी उसको डिफाइन कर सकते हैं। अदरवाइज if any limit is given, कोई भी लिमिट गिवन है then हम उसको कह सकते हैं within this interval we can say this wave function is always normalized, ठीक है। the value of the total probability, that is mod psi square dv equals to 1, that is the total probability equals to 1, ठीक है। अगर हम total probability 1 नहीं होगा then किसी भी वेव फंक्शन के लिए हमने पहले डिफाइन कर लिया total probability should be equals to 1, ओके। सो यही होता है, दैट इज द कंडीशन ऑफ नॉर्मलाइजेशन, दैट इज द टोटल mod psi square, it is the probability density, and mod psi square dv is the probability of finding the particle in certain volume, and integration psi square dv, that is the total probability जिसके वैल्यू should be equals to 1, इतना हमें पता है। तभी this condition should be followed by all wave function, all the physical acceptable wave function मतलब that should satisfy this condition, and this condition is not need to be normalized। and यहाँ पे एक चीज आता है, suppose you are having any physical acceptable wave function, अभी कोई हमें किसी फॉर्म में एक वेव फंक्शन दिया है and हमने उसका क्या निकाला, and we calculated this thing, that is हम इसमें ये चीज निकाला, that is mod psi सपोज नॉर्मलाइज कंडीशन करने के लिए चेक किया, आपको मैंने कोई वेव फंक्शन दे दिया साइज इक्वल्स टू सम सर्टेन वैल्यू, उस पर करेंगे अभी एग्जांपल। वन डायमेंशन में अगर लिखेंगे साई को हम लिखते हैं, देखो थ्री डायमेंशन साई क्या है, एक्स वाई जेड टी, वन डायमेंशन में लिखेंगे दैट इज साई एक्स टी, एंड अंडर दैट कंडीशन जो प्रोबेबिलिटी हम लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी का वैल्यू क्या हो जाएगा, दैट इक्वल्स टू ओनली साई स्क्वायर एक्स। अभी फिर से देखो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्या लिखा था, mod psi square dv that equals to 1, तो dv मतलब यहाँ पे आ जाएगा dx dy dz। अगर इसको वन डायमेंशन में लिखेंगे तो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्या हो जाएगी, mod psi xt का स्क्वायर that equals to dx that should be equals to 1। इसको समझो, थ्री डायमेंशन का हम कोई नहीं कुछ नहीं करेंगे, एवरीथिंग विल स्टडी हियर ओनली इन वन डायमेंशन। सो यहाँ पे ये कंडीशन लिखो, इन वन डायमेंशन वी आर सेइंग psi xt square dx integration psi xt square dx equals to 1. So this is the condition for normalization of wave function when we are considering the wave function in only one dimension. जब हम one dimension में consider करेंगे then this is psi xt square dx equals to 1, ठीक है। तो इसको लिखना mod psi x square dx equals to 1, this is the condition for normalization in one dimension. Suppose I have given वन वेव फंक्शन psi x किसी फॉर्म में लिख लिया, a sin ओमेगा t a एक्सपोनेंशियल कोई एक फॉर्म में दे दिया, मैंने बोला whether you check whether this is a normalized wave function or not, then आप क्या करोगे, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन चेक करोगे, मतलब आपको क्या करना है, you have to find this value, you have to find this value, that is integration psi xt का स्क्वायर dx। इतना करने के बाद सपोज you are getting, इसका वैल्यू कितना आ गया, उस वैल्यू आर गेटिंग a, 1 नहीं आया, you are not getting 1 but you are getting this value a, then अब क्या बोलोगे, इसका वैल्यू 1 नहीं आया मतलब this is not a physical acceptable wave function, ठीक है। तो अगर कोई wave function is not normalized, that is if we are not getting mod psi square dx integration equals to 1, then उसको हमें normalize करना पड़ेगा। सपोज you are getting any constant a आ गया, b आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 10 आ गया, 100 आ गया, 99 आ गया, कुछ भी वैल्यू आ गया, that is constant वैल्यू आया, then हमें क्या करना है, we have to make it normalized, ठीक है। तो normalize इसको कैसे करेंगे, that is the how you can
normalize the thing that is said to be, that is find the normalization constant से multiply करेंगे। देखो पहले ये इसको नोट करो बच्चे, ठीक है। देखो लेट psi xt is not a normalized wave function, ठीक है। नोट डाउन, लेट psi xt is not a normalized wave function, that's why let us psi xt whole square dx equals to mod psi square dx equals to a, we are getting this value। अभी हम क्या करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे बाय 1 बाय अंडर रूट ऑफ a, ठीक है। जो psi of xt था, now let us note down this as, let us consider this wave function psi1 xt, let us note down this function psi1 xt equals to 1 by under root a and this is psi xt, ठीक है। तो now इसको भी हम इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे मतलब इसका फिर मॉड देंगे, दैट इज नाउ वी हैव टू फाइंड, देखो let us multiply this given wave function by 1 by root a, ठीक है। so the new wave function क्या होगा, psi1 xt equals to 1 by root over a psi of xt, ठीक है। now इसको फिर हम नॉर्मलाइजेशन कंडीशन में यूज करेंगे, तो कितना होगा इसका वैल्यू, तो वी कैन राइट psi1 mod psi1 स्क्वायर dx, इसका वैल्यू निकालो कितना हो जाएगी, बताओ इसका वैल्यू कितना होगी, बताओ कितना होगी इसका वैल्यू, दैट वैल्यू इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे कितना आ जाएगी 1 बाय अंडर रूट a एंड यहाँ पे क्या था psi xt का, इसको अच्छे समझ लो बच्चे, बहुत इजी थिंग है, समझना बहुत जरूरी है सॉल्व करने के लिए, छोटा सा न्यूमेरिकल इसमें जरूर आएगा इस फॉर्मूले से, 1 बाय रूट a psi xt स्क्वायर dx, तो इसका वैल्यू कितना आ गया, ब्लैक बोर्ड दिख रहा है यहाँ पर, तो दैट वैल्यू विल बी इक्वल टू 1 बाय a कांस्टेंट बाहर निकल गया एंड यहाँ पे इंटीग्रेशन में कितना आया, दिस इज psi xt का स्क्वायर dx, ठीक है। होगा, हाँ बच्चे बोलो, जो अभी लिखा है होगा या नहीं होगा, अरे बोलो होगा या नहीं होगा, समझ में नहीं आया, यस मैम, होगा मैम। तो अभी बताओ इसका वैल्यू कितना आया था, ये जो वैल्यू इंटीग्रेशन मॉड psi xt स्क्वायर dx, इसका वैल्यू कितना आया था, a हमारी आई थी, अभी ये वाला क्या है a एंड उसका वैल्यू हमने पहले किया था, तो उसका वैल्यू कितना आया था a, नाउ a से b कैंसिल, सो दिस क्वांटिटी इक्वल्स टू 1। नाउ psi जो था वो फिजिकल एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन नहीं था बिकॉज़ इट वाज नॉट नॉर्मलाइज्ड, बट अभी psi1 जो है दैट इज ए नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। अभी psi1 से जब psi को हमने लिखा, क्या किया हमने यहाँ पे, तो व्हेन वी आर राइटिंग psi1 as psi1 equal to psi, this is psi1 xt equals to 1 by root over a psi xt, ठीक है। तो ये जो क्वांटिटी है, दिस क्वांटिटी, नाउ दिस क्वांटिटी इज नॉर्मलाइज्ड एंड दिस 1 by under root a is known as normalization constant, देखो दिस इज नोन एज normalization constant। तो कोई क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, फाइंड द normalization constant फॉर दिस वेव फंक्शन, ठीक है। तो आपको निकालना पड़ेगा ऐसे करके, so this is known as the normalization condition and this is the normalization constant। so any wave function which is not normalized can be normalized by multiplying with a suitable constant and that constant is known as the normalization constant, ठीक है। so this is the condition for normalization, जो हमारी फिफ्थ कंडीशन है। समझ में आया, ये 5 कंडीशन अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, इजी एंड इम्पोर्टेंट कंडीशन से याद रख लेना। नाउ समझ में आया या नहीं आया, Yes, ma'am. अरे ओके, सो नाउ लेट अस सी द फॉर्म ऑफ द वेव फंक्शन। सीधा अभी वेव फंक्शन हमने डिफाइन किया था, इसका फॉर्म कैसे है लिखो, तो व्हाट इज द फॉर्म ऑफ द वेव फंक्शन, फॉर्म ऑफ द वेव फंक्शन इज psi इक्वल्स टू, यहाँ पे ब्लैक बोर्ड दिख रहा है, मैंने इसको पहले लिखा था, ये तो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन हो गया, नाउ आई एम इरेजिंग दिस थिंग, जस्ट
इसको नोट्स में नंबरेशन कांस्टेंट निकालना, डिटेल मैंने नहीं लिखा, आप इसको समझ लो जो बोला। इनके सबको डाउट है, समझ में नहीं आया नोट से नहीं, देन इसका और एक पेज डिटेल करके मैं लिख के फिर दे दूंगी, ठीक है, समझ में आ जाएगी। अगर नहीं आ रहा है ये बता देना पढ़ने के बाद। अभी देखो साई क्या है, ये दिख रहा है ब्लैक बोर्ड में, ये जो लिखा है, इज इट विजिबल? बता बच्चे, अभी पूरा ब्लैक बोर्ड देख के बताओ। तो दिस इज साई इक्वल्स टू a एक्सपोनेंशियल i kx माइनस ओमेगा t, ठीक है। ये कहाँ पे दिया था हमने? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सॉल्यूशन अभी हमें सारे वेव का सेम फॉर्म में होगा, इट इज फंक्शन ऑफ स्पेस कोऑर्डिनेट एंड टाइम, वन डायमेंशन में x एंड t के फॉर्म हम ऐसे ही लिखेंगे। देखो नोट डाउन दिस, इसको लिखो, इसका फॉर्म चेंज करेगा अभी। सो आई एम राइटिंग a इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल i kx माइनस ओमेगा t। k is the wave propagation vector, omega is the equals to pi, that is the angular frequency as usual, x space coordinate, t is the time coordinate, ठीक है। अभी इसको मैं इसी फॉर्म में लिखूंगी, a equals to exponential i, that is iota i, and this is p by h bar x minus h bar by e t। यहाँ पे जैसे i मतलब इमेजिनरी i, iota i, मैं इसको i पढ़ रहा हूँ तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना। So this is your I, ठीक है, this is I P by H bar x minus H bar by E T, सॉरी इसमें H bar by E नहीं आएगा, E by H bar आएगा। This is E by H bar T, लिख सकते हैं इसको? बताओ ऐसे लिख सकते हैं या नहीं? बताओ लिख सकते हैं तो फिर कैसे लिख सकते हैं? That is, हमने सीधा k को लिख लिया p by h bar, ओमेगा को लिख लिया e by h bar। h bar क्या होता है? h by 2 pi। अभी बताओ लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं तो कैसे लिख सकते हैं बोलो? थोड़ा सा इधर उधर करना पड़ेगा और कुछ नहीं। अभी ये साइड दिख रहा है ब्लैक बोर्ड में, ये साइड दिख रहा है बच्चे? अरे बोलो, E इक्वल्स टू h न्यू दिख रहा है या मैं कैमरा और एडजस्ट करूं? दिख रहा है मैम। दिख रहा है, देखो E इक्वल्स टू h न्यू, दैट इक्वल्स टू h क्या है, h बार क्या है? देखो h बार इक्वल्स टू h by 2 pi, और यू कैन राइट h इक्वल्स टू 2 pi h बार। तो हम इसको h को लिख सकते हैं, दिस इज 2 pi h bar न्यू एंड दैट इक्वल्स टू, यहाँ पे h bar आ गया, देन दिस इक्वल्स टू 2 pi न्यू, सो दिस इज h bar ओमेगा। सो वी कैन राइट E इक्वल्स टू h bar ओमेगा। तो यहाँ पे ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं? ओमेगा इक्वल्स टू h bar बाई, ठीक है, वी कैन राइट ओमेगा इक्वल्स टू h bar बाई। सिमिलरली हमारी डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होता है? डी ब्रोगली वेवलेंथ होता है लैम्डा इक्वल्स टू h by t, और we can write p equals to h by lambda, and h को हम क्या लिख सकते हैं? 2 pi h bar and this is by lambda, 2 pi h bar by lambda, and 2 pi by lambda क्या होता है? That equals to k, so this equals to k h bar, so p equals to k h bar। ये रिलेशन आगे भी फोर्थ यूनिट में बहुत यूज होगा, p equals to k h bar, और we can write k क्या है? We can write k equals to p by h bar, ठीक है। तो हम ये लिखेंगे, दैट इज ये जो k का वैल्यू क्या पुट किया? p by h bar, ओमेगा का वैल्यू पुट किया e by h bar, एंड यहाँ पे बाहर i है, हमने इसको माइनस i कर दिया, इसका फॉर्म को सपोज हमने लिखा माइनस i by h bar, तो ये क्या बन जाएगी? e t माइनस px। बताओ क्या हुआ? कुछ समझ में आया नहीं आया? फॉर्म ऑफ द वेव फंक्शन अभी हम ऐसे ही लिखेंगे, तो दिस इज द फाइनल फॉर्म ऑफ द वेव फंक्शन जो आगे अभी यूज होगा, ठीक है। समझ में आया? कुछ ब्लैक बोर्ड दिख रहा है, समझ में आया नहीं आया बताओ? न्यू चीजें, इसका फॉर्म याद रखना है, इसका एक लॉजिक समझ जाओ, इनकेस भूल भी जाओगे नॉर्मल फॉर्म में याद है, इट इज फंक्शन ऑफ स्पेस कोऑर्डिनेट टाइम, a इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल आयोटा k डॉट x माइनस ओमेगा t, एंड यहाँ पे आ गया a एक्सपोनेंशियल, ये जो इधर बॉक्स में लिखा है
माइनस आई बाई एच बार ई टी माइनस पी एक्स, एंड इधर साइड भी सारी चीज लिखा है, पर फिर भी आप यहाँ पे देख लो कि इसका फॉर्म कैसे होता है, समझे? इसका फॉर्म लिखा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज समझ लोगे तो आगे फटाफट हो जाएगा। हुआ? आगे चले, आगे चले नहीं चले बताओ? यस मैम। ठीक है, तो ये इसका फॉर्म इज दिस, इस फॉर्म में। अभी इसी फॉर्म से हमारे सारे डेरिवेशन होगा। अभी एक चीज हेडिंग दे दो, दैट इज व्हाट इज नोन एज ऑपरेटर। ठीक है, ऑपरेटर, व्हाट डू मीन बाय ऑपरेटर इन क्वांटम मैकेनिक्स? एंड ऑपरेटर क्या होता है? देखो, जैसे हमने बोला था, कल हम पढ़ रहे थे, दैट इज द before quantum mechanics, for any particle we are calculating what is its mass, what is its velocity, what is its energy, absolutely निकालते हैं at any point। ये इसका velocity is this, momentum is this, energy is this, everything हम directly निकालते हैं। अभी हमने कल क्या पढ़ा? that is every matter particle is having a wave packet associated with it, and the particle का जो velocity है that is the that equals to velocity of the wave packet, जिसको हम कहते हैं ग्रुप वेलोसिटी, एंड दोनों का वेलोसिटी सेम होता है, दैट इज वी कैन लोकेट द पार्टिकल विद इन दैट रीजन, एंड जिसको हमने बाद में डिफाइन किया एज अ वेव फंक्शन। देन उस वेव फंक्शन को ही हमने बोला दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल, दैट इज एवरी फिजिकल क्वांटिटी, वेदर इट इज एनर्जी, मोमेंटम, एनीथिंग, पोजिशन ऑफ द पार्टिकल, वी कैन कैलकुलेट फ्रॉम द वेव फंक्शन, एंड इसको ही कहा जाता है एज एन ऑपरेटर। So क्या होता है? And in quantum mechanics, every physical quantity is associated with a quantum mechanical operator. In quantum mechanics, every physical quantity is associated with a quantum mechanical operator. So there are mathematical operators. That is every physical observable, that एनर्जी, मोमेंटम, पोजीशन, सारे चीज जो है इनका एब्सोल्यूट डिटरमिनेशन है ही नहीं। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इसको रेस्ट्रिक्ट करके पहले ही रख चुका है। तो हम क्या करते हैं? एवरीथिंग कैलकुलेट करेंगे एज ए फिजिकल, एज ए प्रोबेबिलिटिकली, एंड इसी को ही कहा जाता है एज ए ऑपरेटर। दैट इज मोमेंटम मतलब मोमेंटम ऑपरेटर, एनर्जी मतलब एनर्जी ऑपरेटर, पोजीशन मतलब पोजीशन ऑपरेटर। दैट इज एवरी फिजिकल ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी, जो भी फिजिकल क्वांटिटी निकालेंगे उसको कहेंगे दैट इज नोन एज ए क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर। ठीक है, सो दीज आर मैथमेटिकल ऑपरेटर्स लाइक डिफरेंशियल ऑपरेटर, व्हेन दे ऑपरेट्स ऑन द वेव फंक्शन दे विल गिव द वैल्यू ऑफ दैट क्वांटिटी। ठीक है, सो जैसे कोई ऑपरेटर प्लस से, माइनस से, डिवीजन है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन है, जब तक वो उसके किसी के ऊपर ऑपरेट नहीं करता देन इसका कोई वैल्यू नहीं आता। ठीक है, so ऐसे ही दिस इज द फिजिकल एंड दिस इज द डिफरेंशियल ऑपरेटर। हाँ बच्चे, एनीवन सेंड मी अटेंडेंस? सो अभी हम हाउ वी कैन डिफाइन दिस ऑपरेटर? दैट इज एनर्जी ऑपरेटर, मोमेंटम ऑपरेटर, काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर। ठीक है, इसको हमें ऐसे ही अभी कैसे डिफाइन करेंगे देखो। ठीक है, अभी इस चीज को देखो, मैं फिर से इसको भी नाउ आई एम यूजिंग द ब्लैक बोर्ड अगेन, इसको एक बार देख लो। So I am writing this psi equals to wave function psi equals to a exponential minus I by h bar. This is pt minus px. ठीक है, अभी हमें क्या निकालना है? एनर्जी निकालना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? You have to find del psi by del t, क्योंकि एनर्जी के साथ वेरिएबल क्या है? t। मोमेंटम निकालना है तो x करके। अभी देखो del psi by del t निकालो, कितना आएगा?
डिफरेंशिएशन इतना तो आता है सबको, एक्सपोनेंशियल डिफरेंशिएशन कितना आएगा, दैट इज a, दिस इज माइनस I अपॉन h बार, दिस इज माइनस I बाई h बार et माइनस ps, and that quantity goes to माइनस I बाई h बार, एंड ये पूरा क्वांटिटी मिलकर फिर से आ गया साइन, ठीक है, तो इसमें e आएगा. So this is the and we are getting this quantity equals to psi, or we are writing del by del t equals to minus I e upon h bar, or we can write that implies e equals to कितना लिख सकते हैं, e equals to minus h bar upon I del by del t. So this quantity जो आया, so this is known as the energy operator. This is known as energy operator. समझे कुछ क्या हुआ, कैसे हुआ, बताओ, अरे बताओ. This is energy operator. Is this E equals to माइनस एच बार बाई आई, और इसका फॉर्म अगर चेंज कर देंगे, आई इधर एक ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, देन ई इक्वल्स टू आई एच बार डेल वाई बाई डेल टी, ऐसे ही लिख सकते हैं. माइनस साइन हटाने के लिए आई को ऊपर ले लेंगे, नीचे आई स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगी -1, तो माइनस माइनस कैंसिल. सो वी आर राइटिंग दिस ई इक्वल्स टू आई एच बार डेल बाई डेल टी, दैट इज नोन एज द एनर्जी ऑपरेटर. ठीक है, हाँ बेटा समझ में आया, आया समझ में, हाँ बेटा मुस्कान समझ में आया, नितिन समझ में आया, यस मैम. अभी बताओ मोमेंटम ऑपरेटर कैसे निकालेंगे, मोमेंटम ऑपरेटर कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा गेस करो कैसे आएगा. देखो इसमें कैसे आता है, जब हम साई को, साई में क्या लिखा है, एक्सपोनेंशियल के साथ et माइनस px. सो अगर हम साई को विथ रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे, देन विल गेट द वैल्यू ऑफ दिस क्वांटिटी. ठीक है, ये लिख लिया सबने, सबने एनर्जी का वैल्यू लिख लिया ना, इरेज करके लेट अस राइट इट एज मोमेंटम. ठीक है, ये तो भूल गया होगा सबका, लेट अस नोट डाउन दैट फॉर मोमेंटम ऑपरेटर. So how you can write that for momentum operator, that is del psi by del x equals to कितना लिखेंगे, del psi by del x को कैसे लिखेंगे, that equals to a minus I by h bar. इसको ऑपरेट करेगा देन क्या होगा, कितना आएगी, माइनस p बाहर आ जाएगी into माइनस p, एंड दिस इज फिर से एज यूजुअल जो है I h bar et माइनस px. ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दैट इक्वल्स टू आई पी बाई एच बार ए एक्सपोनेंशियल माइनस आई बाई एच बार पी माइनस पी एक्स, दैट इक्वल्स टू आई पी बाई एच बार साइन. तो क्या आया, del psi by del x equals to I p by h bar psi. That is when del by del psi operating on this side, then we are getting this thing. अगर psi हटा देंगे दोनों साइड से क्या आ जाएगी, del by del x. That implies देखो del by del x कितना आएगा, I p upon h bar. और we can write p कितना होगा, p का वैल्यू h bar by इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे, h bar by I del by del x. This is the value of P, and इसको कहा जाता है this is the momentum operator. And यही दो को लेके हमें निकालना है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन. ठीक है, आगे चलेंगे तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आएगा. इससे पहले और भी कुछ छोटी चीज है, इंपॉर्टेंट चीज इसको समझना है. तो दिस इज द, इसको क्या लिखेंगे, P इक्वल्स टू h bar by I del by del x, that is known as the momentum operator. That is the momentum operator, and this is the energy operator. Energy को क्या लिखा था, I h bar
del by del t, and ये आया आपका IH bar del by, sorry, H bar by I del by del x, and this is the क्या चीज है, this is the momentum operator and this is the energy operator. Okay, so momentum operator and energy operator समझ में आया? What are these two things? So in quantum mechanics, the wave function provides the complete description of the system. इसको देख लो, दो लाइन फटाफट. And all the observable physical quantity can be described as from the wave function. Can be described from the wave function. So there are a number of different states in which are allowed for the system, and these are called some eigen states, and the correspond they are represented by a set of eigen functions. These are called eigen states and are represented by a set of eigen functions. The actual state of the system is a linear combination of these eigen states with different relative probabilities, and the wave function is a linear combination of these eigen functions. ठीक है? So eigen value and eigen function क्या है? देखो, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा समझ लो. अभी देखो हमारे पास क्या आया, ई साई, एंड आइगन वैल्यू इक्वेशन हम क्या लिखते हैं, ई साई इक्वल्स टू, देखो एनर्जी का वैल्यू आ गया, मोमेंटम का वैल्यू आ गया. नाउ यू कैन राइट दिस ई साई इक्वल्स टू एच साई, एंड ये इक्वेशन को कहा जाता है, दैट इज द आइगन वैल्यू इक्वेशन, एंड एच इज नोन एज द हैमिल्टोनियन. हैमिल्टोनियन मतलब हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, इसको दैट इज द टोटल एनर्जी को हम कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी को लिखा जाता है सिंबॉलिक में हैमिल्टोनियन ऑपरेटर. ठीक है, तो इसका हैमिल्टोनियन का अभी आपका कुछ काम नहीं है, ये जस्ट एक डिफाइन है. अभी मेन चीज में हम जाएंगे आइगन फंक्शन. सपोज हमने लिया ई क्या है, ई इक्वल्स टू IH बार डेल बाय डेल टी. अगर यहाँ पे कोई फंक्शन हमने ऑपरेट किया, जैसे वो फंक्शन लिया था साई, साई अगर इसके ऊपर ऑपरेट हुआ, सपोज वी आर गेटिंग सम वैल्यू लैम्डा 1 या a1, कुछ भी आ जाए, सपोज इसको लैम्डा ना लिख के लेट अस नोट डाउन दिस as a1, that is a1 psi. Then this a1 is known as the eigen value. Okay, eigen value मतलब ये क्वांटम मैकेनिक्स में कोई चीज हम एब्सोल्यूट डिटरमिनेशन नहीं कर सकते, एवरीथिंग हम डिटरमिन कर सकते हैं probabilistically. So particle जिस स्टेट में होगा, because it is a moving particle, it is a moving, for a moving particle the state of the particle is different at different instant. So accordingly at different position के साथ, different time के साथ we are always determining the value of that physical quantity. So what is energy value? When the particle is at that instant, that value is the energy eigen value. ठीक है, and तभी इसको क्या कहा जाता है, वो जो वैल्यू आया a, that is known as eigen value, and this psi is known as the eigen function, and this is known as the eigen operator. So what are these eigen values?